हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਫੋਰਫੀਚਰ ਆਫ ਸ਼ੇਅਰਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਔਰ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਫੋਰਫੀਚਰਸ ਆਫ ਸ਼ੇਅਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। Forfeiture of shares means cancelling of shares for non-payment of calls due as a final action against the defaulting shareholders। Forfeiture मतलब ਹੁੰਦਾ है कैंसलिंग ऑफ शेयर्स, मतलब कैंसल करने शेयर्स ਨੂੰ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਆਪਣੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਲਸ ਦੀ ਅਲੋਟਮੈਂਟ ਮਨੀ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੋਲਸ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਭੇਜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਅਨੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜੋ ਕੋਲ ਮਨੀ ਔਰ ਅਲੋਟਮੈਂਟ ਮਨੀ ਭੇਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੰਪਨੀ ਫਾਈਨਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਗੇਂਸਟ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ, ਅਗੇਂਸਟ ਦੀ ਡਿਫੋਲਟਿੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੀ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਪਏਗੀ। ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਫੋਰਫਿਟਡ ਸ਼ੇਅਰਸ ਅਕਾਊਂਟ ਟੂ ਕੋਲਸ ਇਨ ਏਰੀਆ। ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਦ ਦੀ ਕੋਲਡ ਅਪ ਅਮਾਊਂਟ, ਜਿੰਨੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੋਲ ਕਰਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਕੋਲ ਕਰਤੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮਨੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਸਟ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਅਲੋਟਮੈਂਟ ਮਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਕੋਲਡ ਅਪ ਕਰਤੀ ਉਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਕਰਾਂਗੇ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਫੋਰਫਿਟਡ। ਸ਼ੇਅਰ ਫੋਰਫਿਟਡ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੋਲ ਅਪ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਾਊਂਟ ਆਲਰੇਡੀ ਰਿਸੀਵਡ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਲਸ ਇਨ ਏਰੀਅਰ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਲੋਟਮੈਂਟ ਮਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਟੂ ਅਲੋਟਮੈਂਟ ਵੀ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਕੋਲਸ ਨਹੀਂ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈਆਂ ਸੋ ਕੋਲਸ ਇਨ ਏਰੀਅਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਮਾਊਂਟ ਨੋਟ ਪੇਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿਦ ਦੀ ਕੋਲਡ ਅਪ ਅਮਾਊਂਟ। ਇਹ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਲਡ ਅਪ ਅਮਾਊਂਟ ਆਏਗੀ ਜਿੰਨੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੂ ਫੋਰਫੀਚਰ ਸ਼ੇਅਰਸ ਅਕਾਊਂਟ ਟੂ ਕੋਲਸ ਇਨ ਏਰੀਅਰ। ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੋਰਫੀਚਰ ਆਫ ਸ਼ੇਅਰਸ ਓਰੀਜਨਲ ਇਸ਼ੂਡ ਐਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ। ਅਗਰ ਸ਼ੇਅਰਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਹੈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਅਰਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਹੈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਫੋਰਫੀਚਰ ਦੀ ਕੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਆਏਗੀ, ਕੀ ਐਂਟਰੀ ਪਏਗੀ, ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸਪੋਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਅਰਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਜੇ, ਅਗਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਕਾਊਂਟ ਜੋ ਫੋਰਫੀਚਰ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਰਿਸੀਵ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਿੰਪਲ ਐਂਟਰੀ ਪਏਗੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਵਿਦ ਦੀ ਕੋਲਡ ਅਪ ਅਮਾਊਂਟ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਅਲੋਟਮੈਂਟ, ਜਿੰਨੀ ਅਲੋਟਮੈਂਟ ਮਨੀ ਨਹੀਂ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ, ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੋਲਸ ਅਕਾਊਂਟ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਫੋਰਫਿਟਡ ਅਮਾਊਂਟ, ਜੋ ਅਮਾਊਂਟ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੰਨੀ ਕੋਲਡ ਅਪ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੀ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੋਲਸ, ਇੱਥੇ ਕੋਲਸ ਇਨ ਏਰੀਅਰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਕੋਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ। ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਅਲੋਟਮੈਂਟ, ਜਿੰਨੀ ਅਲੋਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ। ਅਗਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਜੋ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਮਨੀ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਨ ਕੇਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਹੈਜ਼ ਨੋਟ ਰਿਸੀਵਡ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਕਾਊਂਟ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਕੋਲਡ ਅਪ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ, ਜਿੰਨਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਚਾਹੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਅਲੋਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਅਰ ਅਲੋਟਮੈਂਟ ਮਨੀ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੋਲਸ ਇਨ ਏਰੀਅਰ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਫੋਰਫਿਟਡ ਅਮਾਊਂਟ ਜੋ ਰਿਸੀਵ ਹੋਗੀ, ਕੋਲਸ ਔਰ ਅਲੋਟਮੈਂਟ ਜੋ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਗਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨਹੀਂ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਫੋਰਫਿਟਡ ਵਾਲੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗਾ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਕਾਊਂਟ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਫੋਰਫਿਟਡ ਵਾਲੀ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।
इस दे नाल रिलेटेड आपां न्यूमेरिकल देखते हैं, जिस दे विच दोने केस करांगे आपां, जिथे आपां सिक्योरिटी प्रीमियम शो करना है और जिथे नहीं करना, ठीक है ना, ताकि तुहानूं क्लीयर हो जाए। लेट्स सी द क्वेश्चन। Amritsar Textile forfeited 250 shares of 100 each, issued at premium ₹25। अमृतसर टेक्सटाइल ने शेयर्स फॉरफिट किए 250 शेयर्स, जो कि 100 का एक हैगा, और जो इशू किए सी प्रीमियम के उत्ते। अमाउंट 100 ਨੂੰ किमें डिवाइड किया हुआ है? अमाउंट पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन एप्लीकेशन, 55 ऑन अलॉटमेंट। 55 ਦੇ ਵਿੱਚ ही प्रीमियम इनकलूड है, 25 रुपीज़ 55 ਦੇ ਵਿੱਚ ही इनकलूड है। The balance in 2 equal installments means 20 रुपीज़ हो जाएंगे, 21st कॉल एंड 22nd कॉल। फर्स्ट केस अपने को द शेयर होल्डर्स हैज़ नॉट पेड द अलॉटमेंट एंड द सबसीक्वेंट 2 कॉल्स। जो शेयर होल्डर्स अलॉटमेंट मनी भी ना पे करन और नाल उन्होंने कॉल्स मनी, जो कॉल्स के उत्ते मनी बनती सी वो भी नहीं पे की, उस टाइम आप फॉरफिचर की एंट्री पानी है। फर्स्ट केस करांगे आप जिस दे विच अलॉटमेंट मनी भी नहीं रिसीव होनी और दोने कॉल्स भी नहीं रिसीव होनी। देखो अलॉटमेंट मनी के नाल आपां नूं प्रीमियम है, अलॉटमेंट मनी 55 रुपीज़ सी, इस दे विच ही इनकलूड प्रीमियम 25 रुपीज़ प्रीमियम दे इनकलूड है। सो आपां नूं अलॉटमेंट मनी नहीं रिसीव हुई, अलॉटमेंट मनी के नाल प्रीमियम है। जो मैं की कहा सी प्रीमियम रिसीव ना होया होवे उस केस दे विच आपां सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ओपन करते हैं। सो इत्थे आपां देख लो अलॉटमेंट दे विच ही प्रीमियम इनकलूड है, इसका मतलब अलॉटमेंट मनी भी नहीं आई और जो प्रीमियम इनकलूड है वो भी नहीं रिसीव होया, इसलिए आपां इत्थे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ओपन करांगे फॉरफिचर दी एंट्री दे विच। नैक्सट केस भी एक बार आपां रीड आउट कर लिए कि शेयर होल्डर्स हैव नॉट पेड दी 2 कॉल। इस केस दे विच अलॉटमेंट मनी रिसीव हो चुकी है, दोनों कॉल्स नहीं रिसीव हुई। सो स्टूडेंट्स इस केस के विच आपां जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है वो ओपन बिल्कुल नहीं करांगे, क्योंकि आपां नूं रिसीव होगी अलॉटमेंट मनी के नाल ही प्रीमियम है वो रिसीव हो गया। इत्थे सिंपल एंट्री पेगी। जो इस फर्स्ट केस है उस दे विच आपां सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ओपन करांगे। देखते हैं हुण आपां क्वेश्चन नूं सॉल्व करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करांगे। फर्स्ट केस कर रहे हैं, इस दे विच सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ओपन कर दिए स्टूडेंट्स आपां, क्योंकि रिसीव नहीं होया। 2 होर की नहीं आया, शेयर अलॉटमेंट मनी नहीं रिसीव हुई, उसनों आपां क्रैडिट कर दिए। 2 कॉल्स इन एरियर, 2 शेयर फॉरफिटेड, जो मनी रिसीव हो गई। देखो शेयर कैपिटल कितनी बनती है, 250 दे शेयर सी, उस दे उत्ते 100 का एक शेयर सीगा, ठीक है। सो 25,000 दे शेयर कैपिटल दे विच पैणगे 25,000 रुपीज़। सिक्योरिटी प्रीमियम 25 रुपीज़ का सी। सो 250 शेयर के उत्ते सिक्योरिटी प्रीमियम कितना बनया, 6,250 रुपीज़। क्लीयर। ये अपनी शेयर कैपिटल मनी बन गई 25,000, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट दे विच कितना आ गया 6,250 रुपीज़। देखो हुण आपां नूं की सीगा, अलॉटमेंट मनी नहीं रिसीव हुई सी, कॉल्स नहीं रिसीव हुई सी। अलॉटमेंट मनी कितनी बनती है 30, टोटल अलॉटमेंट 55 रुपीज़ की सीगी। टोटल अलॉटमेंट देखो 55 रुपीज़ की अलॉटमेंट मनी बनती है, इस दे विच 25 ही प्रीमियम इनकलूड है। सो आप टोटल मनी लिख देंगे, क्योंकि आपां नूं रिसीव नहीं होया, सिक्योरिटी प्रीमियम भी रिसीव नहीं होया। आपां की करना है हुण 250 इंटू 55 रुपीज़, कॉल्स इन एरियर 250 इंटू
2 इक्वल इंस्टॉलमेंट सी देखो 20 रुपीज़ फस्ट कॉल दे हो गए, 20 ही सैकेंड कॉल दे हो गए। टोटल आप देख लीए तो 40 नाल मल्टीप्लाई करके अपने को आ जाऊगा 10,000 रुपीज़। हुण आपां ने देखना शेयर फॉरफिटेड। शेयर फॉरफिटेड दे विच कितनी अमाउंट पाने जो मनी रिसीव होगी। आपां नूं क्वेश्चन दे विच फस्ट केस दे विच आपां नूं कितनी रिसीव हुई है 30 रुपीज़। 250 इंटू 30 रुपीज़ 250 इंटू 30 7500 ये अपनी फॉरफिचर दी एंट्री पैगी इन केस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम इज़ नॉट रिसीव्ड। इन द सैकेंड केस शेयर होल्डर्स हैज़ नॉट पेड दी 2 कॉल्स। हुण देखो जदों जस्ट कॉल्स नहीं रिसीव होंदियां उस टाइम की हैगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉरफिटेड। इस केस दे विच सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ओपन नहीं होएगा। 250 इंटू 100 25,000 कॉल्स इन एरियर कितनी है 250 इंटू 40 दोनों कॉल्स इकट्ठियाँ लिखतियाँ अपने को आ जाएगा 10,000 जो मनी रिसीव होगी। 30 रुपीज़ एप्लीकेशन दे रिसीव हो गए और 30 रुपीज़ जो सॉरी देखो 30 एप्लीकेशन के उत्ते रिसीव हो गई। 30 रुपीज़ अलॉटमेंट दे 55 दे विचों 25 लैस कर देंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम वाला जो दिता हुआ सी प्रीमियम क्योंकि अपन प्रीमियम रिसीव हो चुके हैं इसलिए इत्थे आप मैंशन नहीं करते। सिर्फ 30 इंटू 30 दो बार 30 प्लस 30 60 करके 250 ना मल्टीप्लाई कर देंगे अपने को आ जाएगा 15,000। ये सीगा जदों आपां नूं दोनों कॉल्स नहीं रिसीव होंगे उस टाइम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ओपन नहीं करना। दोनों केस कर ले। आई होप सो स्टूडेंट्स जो फॉरफिचर ऑफ शेयर्स वाला टॉपिक है क्लीयर होया होवे तुहानूं। बस ध्यान की रखना है कोल्ड अप अमाउंट लिखनी है शेयर कैपिटल अकाउंट दे विच और जो नहीं रिसीव हुई उसनूं आपां शो करना है अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एरियर। जो अमाउंट रिसीव होगी उसनूं फॉरफिचर शेयर्स दे विच पा देना है टू फॉरफिचर शेयर्स अकाउंट दे विच जो मनी रिसीव होगी। आई होप सो स्टूडेंट्स तुहानूं एक टॉपिक अच्छे तरीके नाल क्लीयर हो गया होवे। अगर एनी कोई भी डाउट है तुहानूं दैन पुछ सकदे हो तुसीं कमेंट सैक्शन दे विच लिखो। अदरवाइज और इस रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो तुसीं अपनी नोटबुक के उत्ते सॉल्व करके देखो। थैंक यू।